A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the some part of the brain, which we have already discussed in previous class. So, some part of brain. A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another topic. A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic central nervous system. Uh, some part of central nervous system we have already discussed in previous class. Now in this class I am going to start with the third part of brain, that is hind brain. So एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रेन का. Here is central nervous system. Central nervous system, CNS. CNS में we was discussing about brain, और ब्रेन के सम पार्ट हो गए थे. दैट इज ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and last is hind brain. So in previous class we have already discussed about forebrain and midbrain. तो स्ट्रक्चर से ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कहाँ पे हाइंड ब्रेन प्रेजेंट होंगे. सो here is a brain, forebrain, then midbrain and hindbrain. Hindbrain, so start करते हैं forebrain से. We have already discussed about forebrain, that is cerebrum. This part is cerebrum. Now cerebrum में बहुत सारे इनफोल्डिंग प्रेजेंट होंगे. Here is infolding and forebrain is formed by three main or have contains three region: cerebrum, thalamus and hypothalamus. Hypothalamus region. Now midbrain, which is present in between the forebrain and hindbrain. forebrain के thalamus region और hindbrain के जो region present होंगे cerebellum, इनके बीच में midbrain present होगा. Here is midbrain. और नाउ मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ और फॉर्म बाय थ्री रीजन, दैट इज pons varolai, here is pons, then cerebellum and finally here is medulla oblongata. तो ये डिफरेंट रीजन होंगे ब्रेन के. नाउ दिस पार्ट इज नोन एज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये डिफरेंट रीजन होंगे.
ना फोर ब्रेन में कितने रीजन थे? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस विच आर रिस्पॉन्सिबल, हाइपोथैलेमस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द urge of eating and drinking and also regulate the body temperature. Now cerebrum is responsible for the memory and intelligence and और यहाँ पे hypothalamus also perform the intelligence or responsible for the emotional और sexual behavior. Now अब डिस्कस करते हैं cerebellum पार्ट में क्या होता है. pons रीजन में एंड देन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये डिफरेंट सेगमेंट. अब ये कलेक्टिवली हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे, कलेक्टिवली हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगे. ना हाइंड ब्रेन में ये देन ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन होता है. ब्रेन स्टेम में कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे? ब्रेन स्टेम मेनली 3 रीजन से. ये 3 रीजन कौन से होंगे जो ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं? देयर इज ब्रेन स्टेम, दैट इज मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन में pons रीजन, pons, and third is medulla region, medulla. ये डिफरेंट रीजन. और नाउ अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन. ये डिफरेंट रीजन कैसे फंक्शनल होंगे? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड राइज करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अराइज करेंगे एंड मेनली फंक्शन, ये मेजर फंक्शन और मेन बॉडी सिस्टम में जो फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल किडनी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट सिस्टम, तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं. तो 3 मेन सिस्टम को रेगुलेट करेंगे. सबसे पहले हाइंड ब्रेन रेगुलेट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो सिक्रीशन होगा डिफरेंट एंजाइम का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ digestive enzyme in the digestive system. Now in cardiovascular system they also regulate the contraction and dilation of vessels. Then it is regulated by the hind brain. Then इसके बाद excretory system is also regulated. Pons region of brain consist tract of fibers, nerve fibers, mainly nerve fibers. Now these are responsible for or interconnect the different region of brain. These fiber interconnect the different region of ब्रेन, डिफरेंट रीजन ब्रेन के कनेक्ट करेंगे. देन इसके बाद सेरिबेलम, यहाँ पे ये क्या करते हैं कि कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से मोर बहुत स्पेस मिल पाएगा. तो दे प्रोवाइड मोर स्पेस टू द न्यूरॉन्स. form structure to provide more space for न्यूरॉन. ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन डेवलप कर सके, एक्यूमुलेशन हो सके और बहुत न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो, इस वजह से एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे सेरिबेलम. नाउ थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ऑब्लोंगेटा ये क्या करेंगे? ये गिव राइज टू
or connect with the spinal cord. Spinal cord are responsible for the respiratory system, also regulate the respiratory system, regulation of respiratory system, or digestive secretion of, also control the secretion of digestive enzyme, secretion of digestive enzyme, digestive enzyme के secretion में help करते हैं, and also control the cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो रेगुलेट होगा. तो दीज आर रेगुलेटेड बाय द हाइंड ब्रेन, और मेनली विच पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द cardiovascular system, digestive system, secretion of enzyme from the digestive system, or also control the respiratory system. तो ये medulla oblongata मेन फंक्शन करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शन. Topic is reflex action or reflex arch. You must have experience about sudden withdrawal of body part or organ which come in contact with the extremely hot condition or extremely hot object या extremely cold object, या कोई भी स्कैरी एनिमल्स या पॉइजनस एनिमल्स सामने आ जाएंगे. तब ये क्या होता है कि विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS पार्ट सडन विड्रॉल हो जाएगा. आप किसी भी ऑर्गन को सडन हटा लेते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन एनी मॉस्किटो बाइट ऑन योर हैंड, तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस हाथ को या हैंड को अपने रिमूव कर लेंगे. ऐसा कैसे होता है, ये CNS पार्ट के बिना नोन हुए ये प्रोसेस होगा. और PNS जो ब्रेन या PNS सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होंगे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो एनी हाउ ब्रेन को टाइम लगेगा रिस्पॉन्स देने में. तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये होता है, सडन होता है. सडन जब कोई भी एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपने हैंड को, लिम्स को या ऑर्गन को वहाँ से हटा लेते हैं, या हम खुद वहाँ से रन कर जाते हैं. तो या कोई भी स्कैरी एनिमल आ गया तो वहाँ से हम रन कर जाएंगे. तो ये प्रोसेस बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, CNS पार्ट के इन्वॉल्वमेंट के होता है. तो विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ central nervous system sudden withdrawal of body part, specific body part which come in contact with the which come in contact with the extremely hot or cold object or scary and poisonous animal.
scary and poisonous animal. Scary and poisonous animal, ये प्रोसेस क्या कहला रही है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जा रहा है. सडन यहाँ पे सडन विड्रॉल हो रहा है पर्टिकुलर उस ऑर्गेन का. और ये प्रोसेस कैसे हो पा रहा है कि हम किसी भी एनिमल को अगर व्हेन वी सी सम स्कैरी एनिमल्स, कैसे हम रन अवे कर जाते हैं, या कैसे किसी अगर हमें चोट लगती है तो हम पर्टिकुलर उस ऑर्गेन को सडन रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं या विड्रॉल कर लेते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा, डायग्राम के हेल्प से इसे डिस्कस करते हैं. कैसे हम रन अवे कर जाते हैं, या कैसे किसी अगर हमें चोट लगती है तो हम पर्टिकुलर उस ऑर्गन को सडन रिमूव कर देते हैं या हटा देते हैं या विड्रॉल कर लेते हैं. तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा, डायग्राम के हेल्प से इसे डिस्कस करते हैं. Now here is the spinal cord. Spinal cord. अब स्पाइनल कॉर्ड इज कंप्राइजेज विद द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. यहाँ पे दो रीजन प्रेजेंट होंगे, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. तो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होगा. अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर एरिया. सो द अपीयरेंस ऑफ दिस रीजन इज स्लाइटली डार्क इन कंपैरिजन टू द वाइट मैटर. वाइट मैटर के कंपैरिजन में ग्रे मैटर का जो एरिया होगा ग्रेइश इन कलर होगा, ड्यू टू द हाई एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स. और यहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन process होगा. In the reflex action process there is an involvement of two type of nerve or afferent nerve or efferent nerve. We have already discussed about the property of afferent nerve, that is it is a sensory in nature, so that they can able or they are able to transmit nerve impulse or sense from organ to CNS, and if one is effector nerve और इफरेंट नर्व. सो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करेंगे रिस्पॉन्स फ्रॉम CNS पार्ट टू द ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन. नाउ स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये CNS का पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली ब्रेन से ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल नहीं होता है. सम पार्ट ऑफ CNS और मेनली जो ग्रे मैटर होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे इन रिफ्लेक्स एक्शन में. कैसे रिफ्लेक्स एक्शन में ये स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे हियर इज अ ऑर्गन अब कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो क्या होगा, पहले यहाँ से टू टाइप ऑफ नर्व अराइज होंगी. हियर इज नर्व और विच, ये कैसी नर्व है, विच इज अ सेंसरी, विच हैव सेंसरी प्रॉपर्टी, एंड इट दिस नर्व इज अराइजेस फ्रॉम द ऑर्गन. एंड ये क्या करेंगी, दे रिसीव करेंगे इम्पल्स एंड ट्रांसमिट दिस इम्पल्स टू द CNS पार्ट ऑफ द CNS पार्ट को ट्रांसमिट करेंगे. ये स्पाइनल कॉर्ड ये CNS पार्ट के हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एनी स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड और व्हेन एनी स्टिमुलस इज गिवन टू द लेग, कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई मॉस्किटो यहाँ पे बाइट करता है तब क्या होगा, बाइट करेगा तब क्या होगा कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करेंगे, पर्टिकुलर यहाँ से ये लेग या तो पुश कर लिया जाएगा या मतलब विड्रॉल होगा, मतलब हटा लिया जाएगा. यहाँ से ये लेग कैसे हटाया जाएगा, सबसे पहले ये स्टिमुलस क्या है, मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं, ये स्टिमुलस सेंसरी ऑर्गन से
CNS पार्ट तक और स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचे, बाय द एफरेंट नर्व। और ये एफरेंट नर्व और एफरेंट पाथवे, बाय एफरेंट पाथवे के थ्रू, एंड द नर्व इज एफरेंट नर्व। Afferent nerve which participate in the providing stimulus to the CNS part। यहाँ पे afferent nerve क्या कर रहे हैं, ये स्टिमुलस को ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू। एंड नाउ अब डॉर्सल रूट और एफरेंट नर्व क्या है, इट इज अ इफेक्ट रिसेप्टर दैट मीन्स कि रिसीव कर रहे हैं रिस्पॉन्स और ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ से नर्व इम्पल्स को फ्रॉम लेग टू द CNS पार्ट और टू द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द CNS पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड पे ये ट्रांसमिट कर देंगे। देन ये थ्रू द इफरेंट पाथवे के थ्रू और इफेक्टर के थ्रू, दिस इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टर। सो वन नर्व रिसेप्टर होगा एंड वन इज इफेक्टर। तो इसके थ्रू पूरा रिफ्लेक्स एक्शन होगा, दो नर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इफेक्टर नर्व, वन इज इफेक्टर नर्व एंड सेकेंड वन इज अफेक्टर नर्व। रिसेप्टर नर्व एंड इफेक्टर नर्व के थ्रू ये पूरी प्रोसेस होगा। इन दिस प्रोसेस द स्टिमुलस इज गिवन टू द CNS पार्ट ऑफ CNS पार्ट को कैसे स्टिमुलस दिया जा रहा है, थ्रू द वाया डॉर्सल रूट गैंग्लिया एंड द नर्व विच पार्टिसिपेट इज इफरेंट नर्व, और also this nerve is also known as the sensory nerve। एंड इन दिस ये जो इफेक्टर है एफरेंट पाथवे है और इफरेंट नर्व, दिस नर्व इज ऑल्सो नोन एज इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व और ऑल्सो इज मोटर नर्व। तो मोटर नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे होगा, व्हेन एनी स्टिमुलस इज गिवन टू द लेग, देन दिस स्टिमुलस इज ट्रांसपोर्ट टू द CNS पार्ट बाय द थ्रू द nerve dorsal root ganglia, and the nerve is afferent nerve and the pathway is afferent pathway through the sensory nerve। this nerve is also known as the sensory nerve। और जैसे ये ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर तक पहुंचेंगे, फिर ग्रे मैटर से रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि ये इस लेग को या तो पुल करना है और पुश करना है, दोनों ही। ये क्या होगा, विड्रॉल ऑफ लेग। विड्रॉल ऑफ लेग कैसे हो रहा है, इस लेग को हटाया कैसे जाएगा, ये रिस्पॉन्स आएगा, जो स्टिमुलस दिया उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आएगा थ्रू द इफरेंट पाथवे एंड द नर्व इज इफरेंट नर्व एंड इफरेंट इज इफेक्टर नर्व एंड दिस नर्व इज ऑल्सो नोन एज द मोटर नर्व। तो पूरी प्रोसेस इसी तरीके से होगी और फाइनली ये लेग विड्रॉ कर लिया जाएगा ना। एंड कोई भी अगर प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल आता है तो ये भी ब्रेन से रेगुलेट नहीं होगा, बिकॉज ब्रेन से कोई भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। तो उतने अगर हमारे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है तो ये अगर कोई भी डेंजर सामने आएगा तो उस केस में हमें विड्रॉल ऑर्गन का कैसे करना है, या फाइट कैसे करना है, या फ्लाइट कैसे करना है, ये सभी PNS पार्ट से ही रेगुलेट होंगे, PNS नर्व के थ्रू रेगुलेट होंगे। और PNS यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से PNS नर्व कौन कौन से अराइज होंगे, एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व, इफरेंट पाथवे और एफरेंट पाथवे के थ्रू। एंड द डॉर्सल रूट गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। और पाथवे कौन सा होगा, इफरेंट पाथवे। एंड द नर्व विच receive response and transfer this stimulus to the CNS part is sensory nerve। और यहाँ पे मोटर नर्व,
इज ऑल्सो नोन एज द मोटर नर्व। मोटर नर्व के थ्रू ये पूरी प्रोसेस होगा और फाइनली जो लेग है इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर कोई डेंजर आता है तो हमें फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ये भी पीएनएस पार्ट के ही थ्रू ही रेगुलेट होगा। तो पीएनएस पार्ट में कौन कौन से नर्व यहाँ पे राइज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर डेंजर आता है, हमें फ्लाइट करना है, दैट मीन्स हमें रन कर जाना है, भाग जाना है, तब क्या होगा, या अगर फाइट करना है दैट मीन्स हमें उस पर्टिकुलर डेंजर से अगर फाइट करना है, तब भी हमारे रिस्पॉन्स क्या आएंगे, हमें अपने हैंड को और स्ट्रॉन्ग करना है तो यही रिस्पॉन्स आएंगे कि डेंजर आया है और वो नर्व वहाँ पे कौन से नर्व होंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा किसी भी डेंजर को, तो देखने से फिर हमारे विजन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ से एफरेंट नर्व, आई से एफरेंट नर्व निकलेंगे और सेंसरी नर्व अराइज होंगे। सेंसरी नर्व स्टूलस क्या है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, डेंजर को देखा है, वो उसकी क्या इमेज है और यहाँ पे फिर उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से पीएनएस अराइज होंगे। ये पीएनएस कौन से हैं, एफरेंट पाथवे के थ्रू इफेक्टर नर्व अराइज होंगे। इफेक्टर नर्व को क्या बोला जा रहा है, एफरेंट नर्व और मोटर नर्व। और यहाँ से वो हमें दैट मीन्स कि हमें रन कर जाना है तो हमारे लेग क्या होंगे कि हम तेजी से रन करने लग जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, थ्रू मोटर नर्व के थ्रू, कि हमारे लेग को रन करना है तो ये रिस्पॉन्स आएगा मोटर नर्व के थ्रू। और सेंसरी नर्व के थ्रू ये आईज से, तब यहाँ पे आईज से, क्योंकि स्टिमुलस कहाँ पे मिल रहा है, हमें आईज पर स्टिमुलस मिल रहा है कि हमने डेंजर को देखा है, अभी फील नहीं किया है। यहाँ पे फील हो रहा था लेग पर डेंजर, हमने देखा नहीं इस मॉस्किटो को, लेकिन हमारे लेग पर कुछ स्टिमुलस मिला। वो क्या था, ये बाइट कर रहा था मॉस्किटो, तो पर्टिकुलर यहाँ से फिर लेग से यही स्टिमुलस गया और फिर रिस्पॉन्स आया थ्रू द एफरेंट पाथवे के थ्रू। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट एनी, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस पार्ट। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है बट पीएनएस पार्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे पीएनएस कहाँ से अराइज होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से, विच इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, बट ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सडन विड्रॉल होगा। सडन विड्रॉल ऑफ एनी ऑर्गन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस पार्ट इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन है। नाउ इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों लेग को, या अगर फॉर एग्जांपल एक लेग को, अगर एक लेग पे स्टिमुलस प्रोवाइड हुआ है तो एक लेग को हटाना है, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमारा एक लेग पे हमारे मॉस्किटो ने अगर बाइट किया है तो हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन में होगा, यहाँ पे इफ्रेंट नर्व जब स्टिमुलस को ट्रांसमिट करना होगा तो ये थ्रू एफरेंट नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होंगे, जहाँ पे एक एफरेंट नर्व पार्टिसिपेट करेंगे। ओनली वन एफरेंट नर्व पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे, वन एफरेंट नर्व का सिर्फ वन एफरेंट नर्व का पार्टिसिपेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जब रिस्पॉन्स मिलेगा तब ओनली वन इफेक्टर नर्व और इफ्रेंट नर्व का पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन एनी हाउ अगर दोनों पुल करने हैं और पुश करने हैं लेग, तब क्या होगा, तब यहाँ पे दो इफेक्टर नर्व का पार्टिसिपेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे अनदर लेग भी, दूसरी लेग भी है, तो दोनों लेग पर वन वन इफेक्टर न्यूरॉन ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो मे बी रिस्पॉन्स थ्रू एक अफेक्टर नर्व के थ्रू जा रहा है, या रिसेप्टर नर्व के थ्रू जा रहा है, या एफरेंट नर्व के थ्रू जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ओनली वन इफेक्ट। अगर एक लेग को पुल करना है तो वन इफेक्टर नर्व पार्टिसिपेट करेंगे और वन एफरेंट नर्व पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर दोनों लेग को पुल या विड्रॉल करना है तब उस केस में टू एफरेंट नर्व पार्टिसिपेट करेंगे ऑन बोथ द लेग। दोनों ही लेग को पुल कर लिया जाएगा और विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो पूरी प्रोसेस इसी तरीके से होगी। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।